Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your friends, your parents, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing chapter number one. In the last lecture, we had discussed about the concept of the electrical flux, and I think we had discussed number of numerical based on this concept. Am I right, friends? Yes, sir. Today we are going to discuss the Gauss's theorem and application of the Gauss's theorem. Today's lecture is the very most important lecture. There are four different application of the Gauss's theorem and they are asked in the board examinations frequently. So firstly, we are going to prove the Gauss's theorem and then we start to discuss their application. Actually, we know the Gauss's theorem. Anybody know the Gauss theorem? What is the formula or what is the meaning? What is the concept of the Gauss theorem? In some of the numerical, we already had applied the Gauss theorem. So I think if you remember, then you know that the Gauss theorem is nothing but it is the flux associated with the closed surface is equals to charge enclosed by that closed surface upon permittivity. Yes or no? In some of the Yes, numerical sir. we had applied this formula, right? Yes, sir. Okay. So friends, let's come to the question number 31. Up to question number 30, 30, we had discussed this chapter up to 30th question. And today we are going to discuss the 31st question. 30 तक किया था friends? Question number 30 तक किया था? Yes, sir. Okay. So let's come to the question number 31. Question is obtain the Gauss law from the flux associated with the sphere of a radius r and the charge q at the center. So our ultimately target is to prove the Gauss theorem by the help of the spherical shell. क्वेश्चन में यह है कि आपको यहाँ पे गॉस थ्योरम प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ द स्फेरिकल शेल. तो सबसे पहले हम थ्योरम क्या है वो एक बार याद कर लेते हैं. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम. So the statement is net flux associated with any closed surface is equal to ratio of charge enclosed by that closed surface and permittivity of vacuum. So that is the statement. Mathematically, I can say its mathematical expression is this is the symbol for the closed surface. ये जो राउंड है वो क्लोज्ड सरफेस का सिंबल है.
तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस, दैट इज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू नेट चार्ज. नेट चार्ज मतलब जितना भी चार्ज उसके अंदर है उसका नेट मतलब एल्जेब्रिक सम अपॉन परमिटिविटी. So this is the mathematical expression for that. Is it okay, friends? Am I audible to you? Yes, sir. अब हम उसको प्रूव करेंगे. So now to prove the Gauss theorem, we will assume a spherical shell. तो हम गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए स्फेरिकल शेल का अजम्पशन करेंगे और उसके सेंटर पे चार्ज Q है ऐसा अज्यूम करके आगे बढ़ेंगे. So this is the center of the spherical shell which is consist of charge Q, and assume that the radius of this shell is assumed to be a R. इसका रेडियस R है ऐसा अज्यूम करेंगे. चलो मुझे ये बताओ कि मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे होगा. Outward, radially outward. रेडियली आउटवर्ड. यस और नो फ्रेंड्स? ठीक है. Yes, sir. चलो ये उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड. अब हम एक काम करते हैं, हम यहां पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट अज्यूम करेंगे. कंसीडरिंग अ स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर डेल्टा ए, और उसका डायरेक्शन आपको पता है कि कोई भी एरिया वेक्टर कहां पे होता है तो बोले सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. यस और नो? तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस एरिया. सो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर और ये डेल्टा ए वेक्टर है. नाउ फ्लक्स एसोसिएटेड with this surface element तो उसको डेल्टा फाई अज्यूम करेंगे. तो कैन आई राइट इट इज अ ई डॉट डेल्टा ए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स. यस और नो? ठीक है. Yes, sir. तो कैन आई राइट इट इज अ ई डेल्टा ए कोस थीटा. बट मुझे ये बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर डेल्टा ए. कितना एंगल होगा दोनों के बीच में? Theta. हाँ वो थीटा कितना होगा. ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना होगा. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा और आपका वेक्टर डेल्टा ए भी उसी डायरेक्शन में. देखो आप, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर डेल्टा एंड वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट? Zero. जीरो होगा. कोस जीरो क्या होता है भैया? 1. तो कैन आई से इट इज ई डॉट ई डेल्टा ए नाउ. 1. हाँ कोस जीरो 1 हो गया तो मतलब बचेगा क्या? ई डेल्टा ए बचेगा. Yes, sir. बट व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दैट पॉइंट? ये क्यू चार्ज है उसके द्वारा यहाँ पे डिस्टेंस आर है, रेडियस जो है ना वो आर है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ओवर देयर? KQ by R square. के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा ए. ठीक है. चलो यहां तक समझ में आया आपको? Yes, sir. सो ये जो फ्लक्स मिला वो तो मुझे एक सेगमेंट का मिला. दिस इज द फ्लक्स ओनली लिंक विद द ओनली वन सेगमेंट. नाउ आई वांट्स टू फाइंड द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द होल शेल. तो मुझे अब सोच के बताओ कि फ्लक्स एसोसिएटेड Sigma. with the whole shell, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बोले ये सब जितने भी सेगमेंट है उसका समेशन करना पड़ेगा
and the summation will be gets converted into the, that is summation of kq by r square into delta a, and आपको पता है कि वो summation किस में convert हो जाएगा भैया? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन kq by r square into dA। अब शेल के अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना r, वो तो कांस्टेंट रहेगा। शेल के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट के लिए r का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो kq by r square जो है ना, फॉर द थ्रू आउट द स्फीयर, फॉर थ्रू आउट द स्फेरिकल शेल इट इज कांस्टेंट, so it will be get outside the integration. For the throughout the shell kq by r square remaining constant, and hence it will outside the integration, तो remaining term will be equals to integration dA। अब integration dA का मतलब ये हुआ कि जितने भी सेगमेंट है वो सारे शेल का इंटीग्रेट करना है, सारे शेल के जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट का एरिया को इंटीग्रेट मतलब एडिशन करना है। तो आप सारे एलिमेंट के एरिया को एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा भैया? टोटल एरिया। तो के के बदले इन प्लेस ऑफ के उसका आई कैन राइट पेरीमीटर पेरीमीटर नहीं, एरिया। इन प्लेस ऑफ के आई कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q upon r square into the area। इंटीग्रेशन dA मतलब टोटल एरिया ऑफ द शेल, एंड व्हाट इज द नेट एरिया ऑफ द शेल? शेल का एरिया क्या होता है? स्फेरिकल शेल का एरिया क्या होता है? 4 पाई r 4 pi r square। Is it okay friends? Yes or no? यस सर तो फ्रेंड्स ये 4 pi r square सब कुछ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अभी? q by epsilon naught एंड दैट इज व्हाट इज वी वांट्स टू प्रूव। वही तो प्रूव करना था कि नेट फ्लक्स associated with the any closed surface is equals to the ratio of the charge enclosed by that closed surface to the permittivity of vacuum। चलो क्या ये प्रूव हो गया? यस फ्रेंड्स हमने ये गॉस थ्योरम, सर ये गॉस थ्योरम भले ही स्फेरिकल शेल को ध्यान में लेके प्रूव किया है, भले ही उसको शेल को ध्यान में लेके प्रूव किया हुआ है, बट इट इज वैलिड फॉर एवरी काइंड ऑफ क्लोज्ड सरफेस इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड शेप। चाहे कोई भी साइज या कोई भी शेप हो, ये गॉस थ्योरम हमने जो प्रूव किया वो सबके लिए, कोई भी टाइप के स्फेरिकल मतलब कोई भी टाइप के क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, उसके शेप या साइज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है? Is it okay? Is it okay? यस सर Yes, sir. So this is an important question that you have to prepare as a 2 or 3 marks। हमने यहाँ पे शेल के एग्जाम्पल से, स्फेरिकल शेल के एग्जाम्पल से गॉस थ्योरम का प्रूव किया। भले ही ये हमने प्रूव स्फेरिकल शेल को ध्यान में रख के किया हुआ है, बट इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी काइंड ऑफ क्लोज्ड सरफेस irrespective of its shape and size। कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स है गॉस थ्योरम के। तो क्वेश्चन नंबर 32, 31 हमने प्रूव कर दिया। अब 32 डिस्कस सम नोटवर्दी पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑन द गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स है, क्या वो आपको दिख रहे हैं आपके मोबाइल के स्क्रीन पे? यस सर So the very first first point, obviously if the total charge enclosed by the shell is zero, कोई भी क्लोज सरफेस का टोटल चार्ज अगर एंक्लोज चार्ज जीरो है तो ऑब्वियसली फ्लक्स भी क्या होगा? देखो हमने क्या प्रूव किया है कि फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन परमिटिविटी। बट अगर ये नेट चार्ज जीरो है तो ऑब्वियसली फ्लक्स भी Zero ही होगा। जीरो ही होगा, तो ऑब्वियस चीज है। ठीक है? Yes, sir. Second, I had told you that Gauss law is true for any closed surface, no matter what the its shape or size। ठीक है? Yes, sir. Third one, you can apply the Gauss theorem. The charge can be located anywhere inside the closed surface। चार्ज कहीं पे भी हो सकता है। मान लो कि अगर ये आपका एक शेल है, ये सिस्टम है पूरा,
और यहाँ पे क्लोज सरफेस के अंदर Q1 एंड Q2 है, Q1 एंड माइनस Q2 है, बाहर की साइड Q3 है। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू द नेट चार्ज, मतलब Q1 प्लस माइनस Q2 अपॉन द परमिटिविटी, दैट इज द नेट चार्ज। Q3 नहीं आएगा। Q3 क्यों नहीं आएगा? बिकॉज Q3 जो है वो क्लोज्ड सरफेस के बाहर की साइड है, ठीक है? इज इट ओके? ऐसी नहीं है ऊपर का भी। नहीं, मैं आई एम जस्ट कंसिडरिंग द सरफेस नंबर 1। ओके, यस ये तो सिस्टम मैंने बनाया, बाउंड्री बनाया, सिस्टम का बाउंड्री बनाया। इट इज नॉट द क्लोज सरफेस, इट इज जस्ट अ सिस्टम, ठीक है? यस सर। तो ये चार्ज जो है ना वो क्लोज सरफेस के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू बी ऑन द सेंटर। द चार्ज मे बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस, ठीक है? Yes, sir. In the Gauss's theorem, in the left hand side of the equation, the electric field, जो equation के ये left hand side जो electrical field है ना, that is the combined effect of the all the charges, whether they are enclosed or not. देखो फ्रेंड्स, गॉस थ्योरम के लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म है वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो सारे चार्ज जो चाहे इनसाइड हो या आउटसाइड हो सबका इफेक्ट है। बट राइट साइड जो समेशन ऑफ क्यू है वहां पे आपको क्या करना है? दैट इज टू बी कंसिडर्ड ओनली द चार्ज विच आर इन द क्लोज्ड सर्कल। inside the closed surface. Is it understood, friend? यस सर। So electric field on the left hand side of the equation is due to all the charges both inside and outside the closed surface. The term Q in the right hand side of the Gauss theorem, however, represents only the total charge inside the closed surface, only inside the closed surface. ठीक है? यस सर। Fifth one, the surface which we choose to apply the Gauss's theorem, Gauss theorem apply करने के लिए जो surface हम assume करेंगे उसको Gaussian surface बोलते हैं, ठीक है? वो तो obvious चीज है कि जहां पे Yes, हम sir. Gauss theorem apply करेंगे obviously that is obviously a Gaussian surface. तो क्लोज सर्फेस को। हाँ, जो क्लोज सरफेस है वही हमारा Gaussian surface है, ठीक है? यस जो सर। क्लोज सरफेस है वही हमारा Gaussian surface है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है? यस सर। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि गॉस थ्योरम के द्वारा हम कूलम्ब्स लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ के द्वारा हम गॉस थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। मतलब गॉस थ्योरम भी एक हिसाब से क्या हुआ, स्क्वायर इनवर्स लॉ ही हुआ। उसके द्वारा हम कूलम्ब्स लॉ प्रूव कर सकते हैं। एंड आपको पता है कि कूलम्ब्स लॉ तो स्क्वायर इनवर्स लॉ ही है ना, तो दैट इज Yes, व्हाई sir. गॉस थ्योरम कैन आल्सो बी कंसीडर्ड टू बी अ स्क्वायर इनवर्स लॉ। ओके, एंड लास्ट वन, why we are discussing the Gauss theorem? Gauss Yes, theorem sir. पढ़ने का, हाँ लास्ट वन, हम गॉस थ्योरम क्यों पढ़ते हैं, उसका रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि बाय द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गॉस थ्योरम के द्वारा हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। और उसी वही तो हमको करना है। आज के लेक्चर में हम वही करेंगे, हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन ही पढ़ेंगे। हम गॉस थ्योरम के द्वारा हम अलग अलग सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करेंगे। So these are the noteworthy points regarding the Gauss theorem that can be asked as a 2 marks in the examination as well. Simple से points है, आप याद रख सकते हो, 2 मार्क्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है? यस सर। चलो अब हम क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन। गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। हेत ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर यहाँ पे अगर कोई और मीडियम होता तो क्या यहाँ पे फॉर्मूला में परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम लेना होता? ऑब्वियसली, मान लो कि ये आपका स्फेरिकल शेल है, उसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है और मुझे फ्लक्स फाइंड करना है, बट ये कोई अदर मीडियम है जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है। तो ऑब्वियसली द फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस शेल
विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा। ओके ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो वैक्यूम के बदले कोई और मीडियम है तो ऑब्वियसली वो मीडियम का आपको परमिटिविटी लेना चाहिए थियरम में। अब हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। वैसे मेरे नोट्स के अंदर आपको 4 अलग अलग एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम के, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर 3 ही है, बट जेडबल नीट को ध्यान में रख के मैंने 4 एप्लीकेशन हमारे नोट्स में लिए हुए हैं। उसमें से सबसे पहला एप्लीकेशन, ऑब्टेन द इलेक्ट्रिकल फील्ड बाय द वेरी लॉन्ग लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। So the very first application of the Gauss theorem, we will find the electrical field of a very long linear distribution of charge. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझने की ट्राई करेंगे। चलो, हमारे पास लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, वेरी लॉन्ग लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है। चलो, तो to show it is a very long, I had just shown a dotted line, so that is indicating it is a very large linear distribution। और ये अज्यूम करते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। चलो, ठीक है। अब मेरा जो टारगेट है वो क्या है कि इसके द्वारा, देखो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चार्ज है तो डेफिनेटली क्या करेगा, उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी चार्ज है तो वो उसके आसपास क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड जनरेट प्रोड्यूस करेगा। करेगा ऑब्वियसली। तो मैं ना उसके इलेक्ट्रिकल फील्ड मुझे फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, गॉस थ्योरम जब आप अप्लाई करते हो, जब आप गॉस थ्योरम अप्लाई करते हो तो ये 4 पॉइंट आप ऑलवेज फॉलो करो, तो ऑटोमेटिकली ये सारे थ्योरीज है ना वो इजीली आप याद रख सकते हो। तो यू जस्ट रिमेंबर दिस 4 स्टेप्स। तो फ्रेंड्स, whenever you wants to find the electrical field by the help of the Gauss's theorem, you should think about this 4 step। स्टेप 1, सबसे पहले टारगेट को सेट करो, मतलब कहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड कर। देखो ये लिखना नहीं है आपको, एग्जाम के अंदर लिखना नहीं है, आपके सोच में होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए उसकी थ्योरी को इजीली रिमेंबर, टू रिमेंबर द थ्योरी, गॉस थ्योरम थ्योरी इजीली, you just think about these 4 steps। स्टेप 1, सेट द टारगेट। सबसे पहले हम टारगेट को सेट करेंगे, सबसे पहले टारगेट को सेट करेंगे, मतलब कहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है उसको सेट करो। तो फ्रेंड्स, let us we wants to find let us assume that we want to find the electrical field at the distance r perpendicular from the linear distribution at the point p। मतलब ये p पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है। तो मैंने सबसे पहले टारगेट को सेट किया। सपोज वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance r perpendicular to that linear charge distribution। ठीक है, तो टारगेट सेट हो गया। Am I audible to you फ्रेंड्स? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. चलो, सबसे पहले हमने टारगेट को सेट कर दिया, कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है वो सेट हो गया। अब दूसरा स्टेप, फाइंड द ऑल द पॉइंट्स ऑन द टारगेट, मतलब ये टारगेट पे जितने भी पॉइंट्स है उसको फाइंड करो, मतलब आर, ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन से आर जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स है उसको सर्च करो, फाइंड करो। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट सोचो कि ये कितने पॉइंट हो गए ये आर डिस्टेंस पे।
तो क्या आपको एक इमेजिनरी यहाँ पे एक लाइन मिलेगा ऐसा? यस और नो? सर ये रिपीट करो ना लास्ट वन। सेकेंड स्टेप ये यस है सर। कि आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है, ये हमारा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके आसपास आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट को एक के बाद सोचते जाओ। तो आपको यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन मिलेगा, आपको यहाँ पे भी, नॉट ओनली इन द राइट साइड बट ऑल्सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो एट द सेम डिस्टेंस वी कैन थिंक अबाउट द लाइन हियर। मतलब आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है उसको सोचते रहे तो हमको ऐसा, नॉट ओनली टू लाइन, इफ यू थिंक अबाउट दिस इन द थ्री डायमेंशन, तो थ्री डायमेंशनली सोचो तो ये हमारा लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो यहाँ में लुक एट मी सो ये लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके आसपास आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है वो कंसीडर करो तो आपको क्या मिलेगा? आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स है उसको कंसीडर करो तो आपको क्या मिलेगा? लाइन सिलेंडर। You will get the cylinder around the distribution. Yes or no, friends? यस सर। यस सर। So if we consider all points at a distance r from given charge distribution, we can imagine a cylinder of a radius r and assume कर लेते हैं कि उसका लेंथ l है, ऐसा assume कर लेते हैं, ठीक है? चलो तो ये हमको उसके आसपास सिलेंडर मिल गया ये, यस सर। एंड दैट इज व्हाट इज अवर स्टेप नंबर 3। तो ये हमारा, ये सिलेंडर हमारा क्या हो गया? क्लोज गॉसियन सरफेस। गॉसियंस। देखो हमारा मेन टारगेट जो है ना वो गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, बट गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपके पास गॉसियन सरफेस तो होना चाहिए ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू थिंक अबाउट द गॉसियन सरफेस अराउंड द चार्ज। तो चार्ज के आसपास जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो उसके आसपास आपको गॉसियन सरफेस का इमेजिनेशन करना है। तो इमेजिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये दो स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले टारगेट को सेट करो, टारगेट पे और ऐसे कितने पॉइंट्स है उसको सोचो, एंड अगर ये दो स्टेप अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगा? गॉसियन सरफेस। आपको गॉसियन सरफेस मिल जाएगा। एंड वंस यू आर एबल टू गेट द गॉसियन सरफेस यू कैन अप्लाई दी गॉस बस थ्योरम। थ्योरम। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम। ओके फ्रेंड्स, यस सर। चलो अब गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज्ड सरफेस का सिंबल है भैया, ये जो राउंड है वो क्लोज्ड सरफेस है वो बताने के लिए है। तो ये हमारा गॉस थ्योरम है कि भाई इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन परमिटिविटी। अब एक काम करते हैं, ये गॉस थ्योरम का जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको अलग से फाइंड करने की ट्राई करेंगे। कोई मुझे बताएगा विच इज अवर गॉसियन सरफेस? सिलेंडर। ये हमारा सिलेंडर इमेजिनरी, हाँ ये एरिया। इमेजिनरी सरफेस जो है ना वो गॉसियन सरफेस है। दिस इज अवर गॉसियन सरफेस। ये इमेजिनरी सिलेंडर हमारा गॉसियन सरफेस है। तो मुझे यहाँ पे फ्लक्स फाइंड करना है, तो ये सिलेंडर को मुझे पूरे सिलेंडर के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है उसको फाइंड करने के लिए हम सिलेंडर को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? ये सिलेंडर के पूरे फ्लक्स को स्मॉल फाइंड करने सेगमेंट। के हम उसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 3 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से 3 पार्ट? अपर सर्कल
Down color. अपर सर्कल, लोअर सर्कल एंड द कर्व्ड सरफेस, ठीक है। Yes, sir. तो ये सिलेंडर पूरा कंसीडर करना है ना आपको, तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अपर सर्कुलर रीजन, लोअर सर्कुलर रीजन एंड द कर्व्ड सरफेस, ठीक है। Yes, चलो sir. इसको सरफेस 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं। तो मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा। चलो कंसीडर द पॉइंट पी, पॉइंट पी कंसीडर करो। तो पॉइंट पी के सामने जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑब्वियसली हम बाहर की तरफ होगा, ये राइट साइड होगा। Yes, sir. Outward. हाँ, और पॉइंट पी के सामने के ऊपर की साइड जितना भी चार्ज होगा तो उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे होगा, ऊपर का जो आउटवर्ड होगा ऐसे होगा, एंड नीचे की साइड जितना भी चार्ज होगा इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे होगा। बट वापस से इन दोनों का रिजल्टेंट अगर करेंगे ना, इन दोनों का ऊपर नीचे का, तो वापस से कौन सा डायरेक्शन में आ जाएगा, Straight. वो राइट साइड ही जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आई कैन से द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन द पॉइंट पी विल सर बी ये ऑन पता द, नहीं चला। फिर से ओके। चलो मेरा टारगेट ये है कि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन मैं फाइंड करूं। तो चलो पॉइंट पी के सामने के साइड जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, तो ये ऐसा रहेगा, ये सुनो, चलो ये समझ में आया। Yes, sir. अब ऊपर के जो चार्जेस है, ऊपर के चार्जेस, तो उसमें से कोई भी एक चार्ज अज्यूम कर लो यहाँ पे, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर निकलेगा, ऐसे होगा। Yes, sir. सर बाहर अब निकलेगा तो फिर वो सीधा नहीं जा सकता है। हाँ, मुझे तो पॉइंट पी पे सोचना है ना, मेरा टारगेट क्या है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है। वो तो बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में रहेगा, वैसे यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, बट वी आर थिंकिंग अबाउट द पॉइंट पी ओनली, ओके। Yes, sir. और ये नीचे वाला जो चार्ज है तो उसका पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा। Yes, sir. अब सोचो इन दोनों का, मतलब इसका एंड इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो पैरेललोग्राम सोचो, तो उस दोनों का रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, वापस से Right रिजल्टेंट side मिलेगा. राइट साइड Yes, मिलेगा। sir. तो मैं अल्टीमेटली फाइनली मैं ऐसा कह सकता हूं कि पूरे चार्ज, मतलब पूरे लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो राइट साइड मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये अल्टीमेटली द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विल बी राइट साइड, ओके, ऑन द पॉइंट पी। तो मतलब नॉट ओनली फॉर द पॉइंट पी, फॉर ऑल सच पॉइंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। तो ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है। Yes, sir. वो कुल मिला के राइट साइड क्यों हुआ, समझ में आया आपको। Yes, Yes, sir. sir. एंड नॉट, हाँ, अगर लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट्स अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा। Left side. और फ्रेंड्स यू शुड थिंक अबाउट द 3 डायमेंशन। Left side. हाँ, आपको मतलब ये तो 2 डायमेंशन है, अगर 3 डायमेंशन में सोचो तो जैसे कैसे ट्यूबलाइट में से जैसे लाइट बाहर निकलती है ना सारे डायरेक्शन में, उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, ठीक है। Yes, sir. इसमें भी पीछे और आगे. हाँ, आगे पीछे सब जगह पे मतलब रेडियली होगा। इज इट अंडरस्टूड। Yes, sir. Yes, sir. अब मेरा जो टारगेट है ना वो मुझे फ्लक्स फाइंड करना है, तो मैंने बताया आपको कि मैं कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा इसको, 3 पार्ट में। फ्लक्स लिंक विद द अपर सर्कुलर रीजन, फ्लक्स लिंक विद द लोअर सर्कुलर रीजन एंड फ्लक्स लिंक विद द कर्व्ड सरफेस। तो अपर सर्कुलर रीजन कंसीडर करो, अपर सर्कुलर रीजन। तो अपर सर्कुलर रीजन में वेक्टर ए, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में आएगा सोचो। तो एरिया वेक्टर आपको पता है कि परपेंडिकुलर टू सरफेस, लोअर सर्कुलर रीजन में परपेंडिकुलर सरफेस नीचे जाएगा। So what will be the angle between the vector E and vector A for the upper circular region and lower circular region? 90. 90 तो 90, तो अब E dot A के मतलब E A cos 90, cos 90 तो क्या होता है, 0. 0। तो One. इन दोनों, अरे cos 90 थोड़ी ना 1 होता है। 0 0. तो can I say the flux linked with the upper and lower circular region is 0? Yes, sir. Because E dot DA मतलब E DA cos 90, cos थीटा cos 90 0 होगा, ठीक है। बट अगर कर्व्ड सरफेस सोचो, कर्व्ड सरफेस,
तो कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर, कर्व्ड सरफेस का कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी सेगमेंट ले लो, तो वहां पे आपका एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर दोनों, दिस इज द सरफेस 3 कर्व्ड सरफेस। तो वहां पे कर्व्ड सरफेस पे एरिया वेक्टर एंड वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 180 और 0 डिग्री। 0 डिग्री। 0 ही, 180 नहीं आएगा भैया, 0 ही आएगा। ठीक है, yes तो sir. ये आपका हो जाएगा ई डी ए कोस 0। कोस 0 तो क्या होता है भैया? 1 1। अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि कर्व्ड सरफेस के जितने भी पॉइंट है, कर्व्ड सरफेस के जितने भी पॉइंट है वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन से इक्वल डिस्टेंस पे है। यस सर। तो सब जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। सेम रहेगा। तो सेम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, तो कैन आई टेक द इलेक्ट्रिकल फील्ड आउट ऑफ द इंटीग्रेशन? yes sir. तो बचेगा क्या? इंटीग्रेशन डी ए ओनली एंड कोस 0 तो 1 Yes, हो sir. जाएगा। अब ये डी ए सारे सेगमेंट को इंटीग्रेट करो, मतलब ऐड कर दो। इंटीग्रेशन मतलब एडिशन। तो आपको क्या मिलेगा? total of cylinder टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है? 2 pi r 2 pi RH वेरी गुड, 2 पाई आर। यहाँ पे मैंने H. लेंथ को एल अज्यूम किया हुआ है, मैंने ना लेंथ को एल अज्यूम किया हुआ है। तो कैन आई से 2 पाई आर एल? Yes sir. yes sir. चलेगा? ये लेंथ मैंने एल अज्यूम किया हुआ है, चलेगा फ्रेंड्स? Yes sir. yes sir. ओके, तो चलो लेफ्ट हैंड साइड का काम खत्म हो गया। अब हमें ना राइट साइड सोचेंगे कि भाई राइट हैंड साइड जो चार्ज है, एंक्लोज्ड चार्ज, वो फाइंड करेंगे। मुझे ये बताओ कि वेदर एनी चार्ज इज एंक्लोज्ड बाय आवर गॉसियन क्लोज सरफेस, हमारे सिलिंड्रिकल गॉसियन क्लोज सरफेस के द्वारा कोई चार्ज एंक्लोज हो रहा है क्या? no sir अच्छा, नहीं हो रहा है क्या? उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है? पहले तो गॉसियन सरफेस कौन सा है? तो बोला ये वाला जो है ना वो गॉसियन सरफेस है। ये सिलेंडर जो है ना वो हमारा गॉसियन सरफेस है, ये क्लोज्ड सिलेंडर है। वो तो ये, पॉजिटिव चार्ज है ना। हाँ, तो उसके अंदर कुछ तो चार्ज है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चार्ज है इसके अंदर। देखो, हमारा जो रियलिटी जो चार्ज है ना, ये रियलिटी है। ये जो सिलेंडर है वो तो इमेजिनेशन है, बट ये तो रियलिटी चार्ज है ना, ये तो रियलिटी है। ये जो है वो रियलिटी है, ठीक है? वो चार्ज तो इनफाइनाइट है, बट उसका कुछ पार्ट, उसका कुछ तो पार्ट जो है वो हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर की साइड है। तो ये जो इनफाइनाइट चार्ज है उसका कुछ तो पार्ट है जो गॉसियन सरफेस के अंदर की साइड है। तो वो कितना पार्ट है? Linear charge density. Similar. लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा अज्यूम कर लो। तो अब कितना चार्ज एंक्लोज होगा? तो कितना लेंथ अंदर की साइड है? तो अंदर की साइड कितना लेंथ रहेगा भैया? L. एल लेंथ है। तो हाउ मच द चार्ज इज एंक्लोज्ड? Lambda L. हाँ, लैम्डा इंटू एल। क्यों? बिकॉज लैम्डा मतलब क्या हुआ? लैम्डा का मतलब हुआ चार्ज अपॉन लेंथ। तो अगर आपको चार्ज फाइंड करना है तो लेंथ को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई करो। तो कितना लेंथ एंक्लोज हो रहा है? तो बोले वैसे तो इनफाइनाइट लेंथ है, बट एंक्लोज्ड लेंथ कितनी है? तो ये जो लेंथ है वो एल लेंथ है। एंक्लोज्ड जो लेंथ हो रही है वो तो एल है ना, ठीक है? yes sir. तो एंक्लोज्ड लेंथ जो है वो एल है, मतलब इतना जो लेंथ है वो तो एंक्लोज हो रहा है, इतना वाला, ठीक है? तो एंक्लोज्ड लेंथ जो है वो एल है। तो वो चार्ज तो हमारे क्लोज्ड सरफेस के अंदर है। दिस मच चार्ज, ये वाला चार्ज जो एल लेंथ के अंदर है। तो एल लेंथ का चार्ज कितना होगा? बोला लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो लैम्डा इंटू एल होगा। चलो ये समझ आया भैया? yes sir. Yes sir. अब हम ये दोनों को इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 को 1 में हम ऐड करेंगे। 1 के अंदर 2 एंड 3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो इक्वेशन 1 के जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? 1 के लेफ्ट इंटीग्रेशन ई डॉट डी के बदले क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। एंड राइट Yes, साइड क्या sir. आएगा? राइट साइड क्या आएगा? Lambda L by. हाँ, चार्ज अपॉन परमिटिविटी, चार्ज लैम्बडा एल अपॉन परमिटिविटी, एल गेट कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो मतलब ये हुआ कि ये जो सिलेंडर है वो चाहे आप बहुत इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर का अज्यूम करो या छोटे लेंथ का अज्यूम करो, दोनों साइड से लेंथ तो कैंसिल ही हो रहा है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस सिलेंडर को इनफाइनाइट लेंथ का अज्यूम करो या छोटे लेंथ का अज्यूम करो, दोनों साइड से लेंथ तो कैंसिल ही हो रहा है। सो दैट्स व्हाई Independent. दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। तो अब इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना रहेगा? So this is what is the formula of electrical field of a linear charge distribution। आप देख सकते हो कि ये वाला जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है? 1/r, ठीक है Yes, sir. फ्रेंड्स। अब तक हमने दो इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड किए थे। कौन से दो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे हमने? बोलो कौन कौन से दो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने फाइंड किए थे? एक था पॉइंट चार्ज का, Perpendicular. नहीं, एक पॉइंट चार्ज का था और दूसरा डाइपोल का था। अब ये तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया ऑफ द वेरी लॉन्ग लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। याद करो फ्रेंड्स, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? KQ by R By square. R square. तो दैट वाज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर था। डाइपोल का क्या था? डाइपोल का इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या था? On the axis में 2k दो थे। lambda by r, on the axis 2 kp upon r cube and on the equator minus kp upon r cube। याद आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. मतलब डाइपोल का इलेक्ट्रिकल फील्ड जो था वो 1/r क्यूब के साथ वेरी हो रहा था। पॉइंट चार्ज 1/r स्क्वायर के द्वारा वेरी हो रहा था। डाइपोल 1/r क्यूब, बट वेरी लॉन्ग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका क्या आएगा? 1/R. 1/r। So for the dipole charge, point charge 1/r square. For the point dipole, छोटा dipole, point dipole, E proportional to 1/r cube. And for the very long line distribution of charge, 1/R. E proportional to 1/r, ठीक है। इसको सिंपली याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं लगा रहा हूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। सो ये 2 से डिवाइड करने से द्वारा बेनिफिट क्या होगा हमको? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो क्या लिख सकते हैं हम? 1/4 पाई एप्सिलॉन का क्या कह सकते हैं? K. के। तो फ्रेंड्स दिस कैन बी इजीली रिमेंबर, ये आराम से याद रह जाएगा, 2k लैम्बडा बाय r, ठीक है। Yes, 2k sir. लैम्बडा बाय r। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? ठीक है। Yes. एंड अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको, वेक्टर फॉर्म में, तो कोई भी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन का, पॉजिटिव चार्ज के लिए वो आउटवर्ड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए वो इनवर्ड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए वो बाहर की तरफ होगा, Yes, नेगेटिव sir. चार्ज के लिए यूनिट वेक्टर अंदर की तरफ होगा। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes, sir. सो फ्रेंड्स, अगर
आपको ऐसा क्वेश्चन कह सकते, ऐसा पूछ सकते हैं क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई हमारे पास वेरी लॉन्ग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा आ सकता है एग्जाम के अंदर कि भाई वेरी लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका लैम्बडा आपको दिया हुआ है और पूछा है कि भाई इससे ये डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ डिस्टेंस पे कोई पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ऐसा पूछ सकते हैं। मतलब कोई डिस्टेंस आपको दिया हुआ है और यहाँ पे एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, उसको भी दिया हुआ है, एंड यू कैन बी आस्क्ड टू फाइंड द फोर्स। तो फोर्स आपको फाइंड करना है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, ये कैपिटल क्यू के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना चाहिए 2k lambda by r, and now you can apply the formula to find the force F is equals to Q into E, because electrical field का जो फॉर्मूला था वो F by Q था, तो F is equals to QE. Is it understood, friend? तो finally the formula of the force will Yes, be sir. equals to, finally the formula of the force will be equals to 2k lambda, फोर्स का फॉर्मूला ये होगा 2k lambda by r into the charge q, ठीक है। Yes, sir. मतलब फ्रेंड्स आपको ये एकदम क्लियर हो गया, अभी क्या क्लियर हुआ कि अगर पॉइंट चार्ज है, देखो इलेक्ट्रिकल फोर्स जैसे लिखा होगा ना, तो आपके माइंड में सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला आएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स जैसे लिखा हो तो आपके माइंड में फॉर्मूला आएगा के CQ1. Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बट नाउ यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई दैट इज ओनली वैलिड फॉर Point charge. Point charge. point charge. And case number 2, for other distribution, other kind of distribution, for other kind of distribution अगर आपको फोर्स फाइंड करना है तो कैसे करोगे फ्रेंड्स, EQ. Q into E करोगे, where E will be the electric field of given distribution of a given distribution, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया कि कौन सा फॉर्मूला कभी अप्लाई करना है। Yes, sir. ये Yes, सारा sir. डिस्कशन जो है ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के टर्म्स में किया हुआ है, ठीक है। Yes, sir. सो ये फर्स्ट एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन हमने डिस्कस कर दिया। अब गॉस थ्योरम का हम सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ अ वेरी लॉन्ग लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरा एप्लीकेशन ये है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ वेरी लार्ज सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, अब हम वो डिस्कस करेंगे। दैट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द गॉसिस थ्योरम। तो क्या फ्रेंड्स आपको ये थ्योरी समझ आया अभी जो कराया वो? Yes. तो अब हम क्या करेंगे, obtain the expression of the electrical field by a plane मतलब surface of infinite size and with the uniform surface density। चलो, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आया आपको। Yes, sir. obtain the expression of the electrical field of very large infinitely long surface distribution। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिगर के अंदर मैं है ना एक बहुत बड़ा सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे।
though it is a very large, but I had shown only the limited part of this distribution. है तो बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, बट उसका मैंने थोड़ा सा ही पार्ट यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका थोड़ा ही पार्ट यहाँ पे अज्यूम किया है, बिकॉज ऑब्वियसली हम इनफाइनाइट तो बोर्ड ये कंप्यूटर के स्क्रीन पे हम इनफाइनाइट तो सरफेस बता नहीं सकते, बट आपको सोचना है कि वो इनफाइनाइट है, ठीक है। ओके, एम आई ऑडिबल टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. और इट इज कंसिस्ट ऑफ सम चार्ज। मतलब ये कैसे पड़ा है पता चला ना आपको, ये कैसे पड़ा हुआ है पूरा सरफेस पता चला ना आपको, ये वर्टिकली है आपके सामने की साइड। चलो मेरे सामने देखो, जस्ट लुक एट मी। तो ये जो सरफेस है वो ऐसे नहीं है, ऐसे है, समझा? ऐसे पड़ा हुआ है। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज लाइक दैट। इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. ये ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं पड़ा हुआ है, ऐसे है, ठीक है। Yes. Yes. ओके, और मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज के द्वारा ये भरा पड़ा है, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब वापस हम वही करेंगे, स्टेप 1 सबसे पहले क्या करेंगे? टारगेट सेट करेंगे। टारगेट को सेट करेंगे, मतलब अज्यूम करेंगे कि भाई मान लो कि भाई हमको है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना उससे पी पॉइंट पे, जहाँ पे पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है, एंड अज्यूम दैट द वेयर द पॉइंट पी इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस आर, कोई आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, वहां पे मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है। चलो, तो ऐसे आप सोचते जाओ तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे सारे पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन के पास आसपास दोनों साइड ऐसे सोचते ही जाओ, सोचते ही जाओ, तो आपको क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा आपको? ऐसा ही एक सरफेस मिलेगा यहाँ पे, Yes, sir. और ऐसा ही एक दूसरा सरफेस यहाँ पे भी मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड क्यूबर भी। मिलेगा। ये सुनो फ्रेंड्स। Yes, Yes, sir. sir. तो फ्रेंड्स ये जो है ना वो इमेजिनेशन है, तो ये जस्ट इमेजिनेशन है, वो चार्ज नहीं है। इट इज नॉट द चार्ज्ड वन, दिस ऑब्वियसली विल नॉट बी चार्ज्ड वन, ठीक है। यस और नो? Yes, sir. Okay, so what we'll get? We get the similar surface on both the side, but I will assume only the part of that. उसका भी मैं ना थोड़ा सा ही पार्ट अज्यूम करूंगा, मतलब मुझे मिलेगा तो पूरा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सरफेस ही मिलेगा, बट फिर से मैं क्या करूंगा, उसका थोड़ा ही पार्ट अज्यूम करूंगा for the sake of the simplicity. I will prove that there will not be change in the answer. I am going to prove this. मैं प्रूव करके दूंगा कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो उसके साथ कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगा उसके द्वारा। मैंने भले ही ये Independent of length. थोड़ा ही क्या बोल रहे हो? Independent of length होगा. हाँ परफेक्ट, वो लास्ट में ऐसा प्रूव हो जाएगा कि इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। आई विल इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, लेंथ के बदले यहाँ पे मोर प्रिसाइजली आई शुड से it will be independent of area. Is it understood, friend? Yes, sir. वो मैं प्रूव करके दूंगा, डोंट वरी।
ओके चलो, तो फ्रेंड्स अब मेरा जो टारगेट है वो क्या है, गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। अब जब तक मेरे पास क्लोज सरफेस नहीं है, आई कैन नॉट अप्लाई द गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, क्लोज सरफेस बनाना। क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। तो कैसे क्लोज बनाओगे, सरफेस फॉर्म करना। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कैसे बनाएंगे क्लोज सरफेस, थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा आपको कैसे बनाएंगे क्लोज सरफेस। ज्वाइनिंग। सबको ज्वाइन कर दो, तो इसको अगर ज्वाइन कर देंगे ना तो बन जाएगा हमारा क्लोज सरफेस, यस और नो। यस सर। यस सर, क्यूबॉइड। अगर इसको, हाँ, तो ये सब क्या है, ये जो सारा चीज है वो हमारा इमेजिनेशन है। और ये इमेजिनेशन करने की जरूरत क्यों है, बिकॉज उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते गॉसियन सरफेस का इमेजिनेशन हम करेंगे, नो, गॉसियन सरफेस का इमेजिनेशन करेंगे ना, तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारा जो कुछ है दैट इज अवर इमेजिनेशन। ठीक है, यस सर। यस सर। तो दिस वन इज अ reality having surface charge density sigma, and this is what is our इमेजिनेशन। गॉसियन सरफेस। ठीक है। चलो, अब मुझे सोच के बताओ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कैसे होगा, ये हमारा जो रियलिटी है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कैसे होगा। राइट साइड। Can I say the electrical field lines is a for this side it is outward like this. यस सर। So this will be the electrical field lines. Yes or no, friends? Can I say यस this? सर। यस और लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड होगी, yes or no? यस सर। बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना, तो उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑब्वियसली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, यस। अब मेरा जो टारगेट है वो क्या है, बोले गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। तो हमारे पास गॉसियन सरफेस है, तो हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम, and the formula of the Gauss theorem is the integration E dot dA, that is flux associated with the closed surface, that is equals to charge inside the closed surface upon permittivity. तो एक काम करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोचते हैं। तो ये क्यूब, हमारा जो गॉस सरफेस है वो क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड के कितने सरफेसेस होते हैं, क्यूबॉइड के कितने सरफेसेस होते हैं, 6। 6 सरफेस। 6 सरफेस। तो उसमें से इसको नंबर 1 बोलते हैं, ये सरफेस को नंबर 1 बोलते हैं, ये सरफेस को नंबर 2 बोलते हैं। और उसके अलावा जितने भी सरफेस है 1 एंड 2 के, 1 एंड 2 के अलावा जितने भी सरफेस है उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा, सोचो। जैसे मान लो कि ये ऊपर का जो सरफेस है ऊपर वाला, तो उसका वेक्टर ए ये डायरेक्शन में होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यस और नो। 90 डिग्री। सर। तो वेक्टर ए ऊपर की साइड होगा, नीचे के सरफेस का वेक्टर ए नीचे की साइड होगा, फ्रंट साइड का सरफेस जो उसके साइड उसका फ्रंट साइड होगा, बैक साइड का सरफेस का वेक्टर ए बैक साइड होगा। तो ये जो चारों सरफेस है उसके लिए वेक्टर ए एंड वेक्टर ई के बीच में एंगल कितना होगा, 90। 90 90। डिग्री। मतलब 4 सरफेस देखो, अपर लोअर फ्रंट एंड बैक, अपर लोअर फ्रंट एंड बैक, वो चारों सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा, 0। 0 होगा, बिकॉज एंगल कितना होगा, एंगल 90 होगा। तो कैन आई से ओनली द 2 surfaces should be considered, other surface the flux will be 0. यस यस सर। सर। चलो, क्या ये चीज यस समझ सर। आया,
So Yes, we need sir. to find the flux only with the surface 1 and 2. Yes or no, friends? Yes or no? Yes, sir. मान लो कि ये एरिया ए है, ये जो सरफेस 1 जो है उसका एरिया ए है, तो ऑब्वियसली सामने की साइड सरफेस 2 का भी एरिया कितना होगा? 1. A. इसका अगर एरिया ए है तो इसका भी एरिया ए ही होगा ना, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. और वहां पे मुझे ये बताओ वहां पे कि वेक्टर ए एंड वेक्टर ई के बीच में एंगल दोनों जगह पे कितना होगा? 0. देखो 0. आप देख सकते हो कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर ई है, यहाँ पे भी ये वेक्टर ए है, वेक्टर ई है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यस और नो फ्रेंड्स? Yes, sir. 1. तो एंगल 0 होगा। तो इंटीग्रेशन ई एट पी डॉट डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई पी डैश, एक पॉइंट पी डैश अज्यूम किया हुआ है, डॉट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? बिकॉज कोस जीरो क्या होता है? ई डी ए कोस जीरो 1 हो जाएगा। बट पॉइंट पी जितना भी ये एरिया है वो सारा एरिया इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड सब जगह पे इक्वल होगा, तो ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन डी ए मतलब पूरे ये सेगमेंट का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पूरा एरिया ए मिल जाएगा, दैट इज कैपिटल है, प्लस ई पी डैश इंटू कैपिटल है। बट फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि दोनों एरिया इक्वल डिस्टेंस पे है, ये भी आर डिस्टेंस पे है, ये वाला भी आर डिस्टेंस पे है, मतलब तो फिर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड पी डैश पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड सिमिलर होना चाहिए। तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्लोज सरफेस? कैन आई से इट विल बी अ 2EA EPA plus 2EA. EPA, that is 2EA. Is it okay friends? Yes, sir. चलो Sir. लेफ्ट हैंड साइड का खत्म हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? चार्ज Right hand. एंक्लोज्ड। तो मुझे ये बताओ कि क्या Right कोई hand side. चार्ज, हाँ, तो मुझे ये बताओ कि क्या कोई चार्ज एंक्लोज हो रहा है हमारे गॉसियन क्लोज सरफेस के द्वारा? Yes, sir. तो वैसे चार्ज तो इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन है, बट उसका कुछ तो पार्ट है, उसका कुछ तो पार्ट है कि जो हमारे क्लोज्ड सरफेस के द्वारा एंक्लोज हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ तो पार्ट जो है वो क्लोज सरफेस के द्वारा एंक्लोज, कितना पार्ट एंक्लोज हो रहा है? तो ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये वाला, ठीक है? तो ये Yes, पार्ट sir. में जितना भी चार्ज होगा वो हमारे ये क्यूबॉइड के अंदर होगा। यस और नो? Yes, sir. ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो उसके अंदर जितना भी चार्ज होगा वो हमारे क्यूबॉइड के अंदर होगा। यस और नो? एंड व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ दिस पार्ट? इसका एरिया क्या होगा? अरे भैया इसका एरिया ए है, इसका भी ए है, तो फिर इसका भी एरिया कितना होना चाहिए? A. A होना होगा. चाहिए। तो मुझे बताओ सोच के कि कितना चार्ज एंक्लोज होगा? हाउ मच द चार्ज इज एंक्लोज्ड? L square. ठीक है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है ना वो सिग्मा है। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो ऑब्वियसली हाउ मच द चार्ज विल बी एंक्लोज्ड फॉर द एरिया ए? Sigma A. सिग्मा इंटू ए, ठीक है? इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes, sir. तो सिग्मा ए विल बी द चार्ज एंक्लोज्ड बाय आवर गॉसियन क्लोज सरफेस। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? Yes, sir. Now putting the value of the Yes, sir. equation, putting the value of the equation 2 and 3 in the one, so from equation number 1, 2 and 3, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखना चाहिए मुझे? 2EA. एंड राइट साइड मुझे क्या लिखना चाहिए? Sigma A upon epsilon naught. देखो फ्रेंड्स, ए गेट कैंसल्ड। देखो मैंने पहले ही बताया था आपको कि एरिया का कोई मायने नहीं रखता, आप चाहे बड़ा वाला क्यूबॉइड सोचो या छोटा वाला क्यूबॉइड, दोनों साइड से एरिया तो Cancel ही हो जाएगा. कैंसिल ही हो जाएगा। सो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द आंसर
And what will be the final answer? E is equals to sigma by 2 epsilon naught. Sigma by 2 epsilon. sigma by 2 epsilon naught. And you can write in the vector form as well. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो सिग्मा by 2 epsilon naught into n cap, where n cap is the unit vector normal to the surface distribution. For the positive distribution it is a outward direction, for the negative distribution it is a Inward in inward direction. normal vector. ठीक है Yes, sir. फ्रेंड्स? ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना वो बहुत ही जबरदस्त है. पूछो क्यों? क्यों सर? Yes, sir. बिकॉज आप देख सकते हो कि इसके अंदर कहीं पे लास्ट में डिस्टेंस आ रहा है. No, sir. नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है फ्रेंड्स. सो दिस इज द ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस. आप इनफाइनाइट लॉन्ग सरफेस से कहीं पे कोई भी पॉइंट पे चले जाओ. सो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट नोटेबल थिंग हियर, important and notable thing is here that it is the only electrical field which is not depend on Independent of distance. distance. So अगर कोई ऐसा पूछे कि E proportional to R का कौन सा पावर आएगा तो क्या आएगा? 0. 0 आएगा. अगर कोई ऐसा पूछे कि ग्राफ अगर ड्रॉ Zero. करना है, अगर कोई ऐसा पूछे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करना है फ्रॉम द सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ कैसा मिलेगा भैया? Straight. मतलब साइड में. It is a slipping line with at which value? At the value sigma by 2 epsilon naught. ठीक है? Object का होता है वैसे. क्या बोल रहे हो? तो सर मतलब रेस्ट ऑब्जेक्ट का भी ऐसा ही होता है. किसका? रेस्ट ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट अरे रेस्ट. वो तो देखो यार, आप कहाँ से कहाँ पे लिंक कर रहे हो. वो रेस्ट ऑब्जेक्ट का पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है. मतलब वो तो क्वांटिटी क्या है उसके साथ सोचना है. तो मतलब सर ठीक ऐसे ही है, मतलब. हाँ हाँ चलेगा. So this is the fourth electrical field for the very large surface distribution. What is the electrical field? E proportional to R raised to 0. 0. आया बात समझ में? Yes sir. So friends, it is a very interesting. देखो ये फर्स्ट चैप्टर एक ही थ्योरी बाकी है फ्रेंड्स. अभी एक थ्योरी आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू एक ही थ्योरी बाकी है. तो नेक्स्ट लेक्चर में वो भी खत्म हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, आई थिंक यू फाइंड दिस 12th स्टैंडर्ड क्वाइट इंटरेस्टिंग. आई होप कि Yes, बहुत sir. इंटरेस्टिंग है. Yes, sir. हाँ. Yes sir. और फ्रेंड्स, मैं आपको सीरियसली बताऊं कि 11th के रिस्पेक्ट में 12th बहुत ही इंटरेस्टिंग है. वैसे 11th भी इंटरेस्टिंग है बट उसके रिस्पेक्ट में 12th ज्यादा इंटरेस्टिंग है. तो आई होप कि आप साथ साथ काम करोगे, मेरे साथ होमवर्क करोगे. आज 4 थ्योरी मैंने आपको डिस्कस कराया. 4 थ्योरी हमने डिस्कस किया. थ्योरी नंबर 31, 32, 33 एंड 34. वो चारों थ्योरी आपको 2 बार होमवर्क में लिखना है. वैसे ये पीडीएफ में आज के लेक्चर का पीडीएफ वगैरह सेंड कर देता हूँ. थर्सडे आपका जो एग्जाम है दैट विल बी ऑफ द चैप्टर नंबर 15th ऑफ 11th स्टैंडर्ड. ओके, Yes, sir. टिल Yes लास्ट sir. लेक्चर, सर जहाँ तक है जहां वही. तक करवाया था. ओके, तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं. ओके, Bye, sir. बाय, गुड बाय, Bye sir. Okay. बाय बाय बाय. थैंक यू.